So after Mediclaim, our next point, right and responsibility of the insured and insured. So first of all, right of the insured. क्या rights होते हैं insured के लिए? So right to avoid the policy. So the principle of the almost good faith is a must in insurance contract between the insurer and the insurer. The insurer has the right to avoid the policy in case of insurer make the claim of the ground or of the grant of the fraud. Okay. After that, the right to entry and the control over the property. So in case even of any danger of or any damage of loss property of the insurer insurance company the right entire and the take position to the property to determine the cause of the extent of losses to protect the salvage minimum of the loss. So these are the right entry of the control of the property. So right of the reinvestment. So what type of the right investment? So the insurer has the option to reinstate or the replace of damaged property instead of paying of the amount of damage in money. The right protect the insured against any unreasonable claim. The insured no right of claim of reinstallments. So the next point is right of subrogation. The insured is entitled to all right and responsibility which may be posed by the insurer as a respect of the subject matter of the insurance. So before claiming, the right of the insurer must be first under the policy insurance. However, the insurer are entitled this right even there making the payment provide they provide have the following the necessary policy of conditions. So right of contributions. So the rights of application we insure has taken more than one policy the same risk. In case of any losses of damage, the insurer will be required to contribute probably of the towards of losses. जैसे कि मैं last point के अंदर कहा था. Okay, so after that the right of the salvage. So it is the duty of the insurer hand over the salvage remain to the insurer of the damage loss happen to the property where insurance pay the loss in full. He also entail the salvage whatever in the maybe. Okay. So our next point, responsibility of the insurer. So what type of the responsibility of the insurer? The responsibility of the being honest. हॉनेस्ट होना बहुत ही जरूरी है. अगर आप हॉनेस्ट नहीं होगे तो क्या होगा? आप इंश्योरेंस के साथ जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ फ्रॉड करते हुए नजर आओगे. लास्ट सेम लाइक बिफोर पॉइंट, if you are not honest in the insurance company, so you are frauding with the of insurance, or they will never pay you the any type of claim of any type of amount in after policy ended. Okay, so first point, responsibility of the being honest. It is the prime responsibility of the insurer to provide true information and the insurer. Providing false information can be lead of the policy getting cancelled of the grounds of the dishonesty. Okay, so you are not providing the right information, they will not giving to any type of claim, or you are doing the fraud with insurance company. So provide always the true or truth information to. So the responsibility of the being honest, we need the amount of losses of damage caused should be represent to the insurer as and how without making and false claim cannot be lead of the cancellation of the policy. The insurance person is responsible to pay the premiums of time as when they are due to any deals might lead to the policy generate of cancel. Any changes in the addresses, contact details, nomination, etc. must be information to the insurance on the priority. So these are responsibility of honest insurer. So next point, responsibility of the insurer. So responsibility of the insurer, point first, pay benefit. The pay benefit. What is mean by the pay benefit? The insurer has the right collect advance and a specific sum premium as he talking about the responsibility of reimbursement of losses and when they arise the insured. So pay benefit after our next point, risk assessment. So risk assessment underwrite are hired of insurance of excess of amount of risks and actual amount of losses that have occurred help to insure to calculate amount of claim payable avoid the paying more and the actual amount of loss. देखिए कि हमें कितना उसका अंदर रिस्क होता है और हम कैसा हमारे जो रिस्क है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका हम कितना क्लेम करेंगे, ये होता है रिस्क असेसमेंट के अंदर. ओके, सो आफ्टर दैट आउटकम इंश्योरेंस प्राइवेसी. सो इसे कहते हैं हम इंश्योरेंस प्राइवेसी. सो इंश्योरेंस
privacy, the insurance company insurer have to set aside a certain amount of their income for the policy reserve to ensure that they are able to compare of the losses and when they occur. After that, the insurance company have abide of the privacy regulation of the must make sure the follow of the privacy guideline of disclosing of the information maintaining of the client and the third party. So these are under come of insurance privacy. After that come the right of the insurers. So which type of right of the insurer? We need to first check the right of the avoid the policy. The principle of almost good faith of the must an insurance contract between an insurance and the insurer has the insurance has the right avoid the policy in case of insurer maintain the claim of the grounds and the fraud. Okay, so after that the same point the right of the entry and over the property in the event of the damage of losses the property as the insurer the insurance company has right to enter and take position of the determine the causes of the extent losses to the salvage minimum of the loss. So right of the reinstallment. So right of the reinstallment, the insurance has option of reinstallment, replace the damaged property instead paying amount of disease in the money of the right protect the insurance against the unsuitable claims. And the unsuitable has the right claim of the reinvestment. So our next point, right of contributions. The right is application when an insurer has taken more than one policy for the same risk. In case of the loss or damage, the insurer will be required contribution and propagation of towards in the losses. So after that come the right of salvage. So right of salvage. In the right of salvage, the duty of the insurer of hand of overall the salvage remain to the insurance after the damage or losses happen to the property where the insurance pay for the loss in full. He is also entitled to the salvage whatever is worth may be. So these are all types of insured. Of after that, our next point, types of general insurance policies. So first of all, the general insurance cover insure a property against the fire, theft, personal insurance, health and travel, accidental insurance, etc. Unlike life insurance policy, the term general insurance policy is not lifetime. Some of the types of general insurance policies are fire insurance, motor insurance, after that theft insurance. Okay, so these are some policies in our life insurance policy. So after that, the most important point in our general life insurance policy, the personal insurance policy. So personal insurance policy undercome medical insurance, property insurance, and vehicle insurance. After that, the rural insurance policy undercome protection against the losses. After that, climate disaster and the agriculture rural, etc. After that, the individual industrial policies undercome coverage of projection, after that construction and fire equipment, etc. And next point, the commercial insurance policy. So commercial insurance policies undercome protection against the losses and damage of the property during the transportations. So transportations like marine insurance, cargo insurance undercome. Let's see our first point in general life insurance policy, fire insurance. So what is mean by fire insurance? Fire insurance leads to destroy a property valuable and the even life. अगर कहते हैं ना कि फायर इंश्योरेंस अगर कोई नुकसान होता है जलने के वजह से तो हमें क्या करता है ऐसे टाइम पे हम उसको इंश्योरेंस क्लेम करके हमारा जो नुकसान हुआ है वो हम क्या कर सकते हैं कंपनी को क्लेम करके हमारे जितना नुकसान हुआ है उतना हम कंपनी क्लेम करके हमारे अमाउंट हम ले सकते हैं मतलब हमारा नुकसान जहाँ पे हुआ है उसको हम नुकसान को कम कर सकते हैं. So a fire insurance policy protect the policy holder from the risks that occur due to outbreak of fire. Okay, उसके बाद आता है मोटर इंश्योरेंस. सो मोटर इंश्योरेंस मतलब लाइक ऑटो इंश्योरेंस, उसके अंदर क्या होता है कि मोटर इंश्योरेंस प्रोटेक्ट योर व्हीकल फ्रॉम एनी डैमेजेस लाइक थेफ्ट दैट कॉज ऑफ व्हीकल ड्यू टू ऑन रोड एंड ऑफ रोड इमरजेंसीज. देखिए मोटर इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, हम मोटर इंश्योरेंस क्यों निकालते हैं कि हमें पता है कि हमें इसके अंदर आगे जाके कहीं ना कहीं कभी खतरा हो सकता है, कभी रिस्क हो सकता है, जैसे कि एक्सीडेंट है, थेफ्ट है, चोरी जा सकती है मोटरसाइकिल या कार, तो उसके अंदर क्या होता है हम उसका इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमें क्या होगा, हमारा इंश्योरेंस जो है वो हमें क्या करेगा आगे जाके
हेल्प करेगा, सही है। सो मोटर इंश्योरेंस इज मैंडेटरी and compulsory in India as per the Motor Vehicle of Act 1988 and the outbreak of the fire. So after that, the third party insurance, a statutory legal requirement in our country, that is our owner is vehicle liable of any injury or any accidental. So these undercome of motor insurance and damage caused to third party life or property that arise because of use of vehicle or public place. So our next point in health insurance. So healthcare costs are increasing every year due to urbanization, stress, and work unhealthy lifestyle. Health insurance cover the medical and surgical expenses of the insured due to hospitalization from the illness. जैसे कि लास्ट पॉइंट में हमने इसको कवर किया था कि हेल्थ इंश्योरेंस जो जिसके अंदर क्या होता है, हमें सर्जिकल और जो ऑपरेशन रिलेटेड जो एक्सपेंस होता है वो क्या करता है, कवर करता है. Okay, so health insurance policy help to reduce the financial risks associated with the healthcare and include cashless facility and certain hospitals pre and post hospitalization expenses, ambulance charges, daily cash allowance, etc. So cashless facility also providing in health insurance policy or without cashless. It means you paying for the bill. After that, you get the treatment and paying for the bill of the hospitalization and claim in insurance company. Okay, so next point is travel insurance. So domestic and international travel involve risks like loss of baggage, loss of passport, theft, mislanding of luggage, medical emergency, etc. देखिए ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि अगर आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको कौन से रिस्क हो सकते हैं, आपका जो लगेज है वो मिस आउट हो सकता है, सही है। मतलब कहाँ पे लगेज है, सामने से सामान कहते हैं लगेज, और जैसे कि पासपोर्ट ये कहाँ मिस लैंडिंग हो सकता है, मिस चोरी हो सकता है, सही है। तो उसके लिए भी क्या होता है, इंश्योरेंस होता है कि अगर आपका लगेज चोरी हो तो जितना आपका कॉस्ट है उसको कॉस्ट के हिसाब से आपको उसकी अमाउंट दी जाती है. ओके, सो ट्रैवल इंश्योरेंस ऑल्सो नोन एज विजिटर इंश्योरेंस प्रोटेक्ट द इंश्योर अगेन unseen medical and non-medical emergencies during travel insurance hassle free for the travel experience. देखिए अगर आप कहीं पे ट्रैवल करते हो, मोस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल्स, उसके अंदर क्या होता है, आपके टिकट के साथ आपको एक इंश्योरेंस भी दिया जाता है. मोस्ट इन केसेस के अंदर क्या कहता है कि अगर इन केस कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो वो इंश्योरेंस क्या करता है, आपके फैमिली को दिया जाता है, सही है। मतलब अगर कोई इनके अंदर कोई डेथ वगैरह होती है या कोई प्रॉब्लम हो सकता है ट्रैवल्स के दौरान, तो वो इंश्योरेंस आपको फैमिली को दिया जाता है. ये है ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर. Okay, so next point is home insurance. So everyone know about the home insurance. Home insurance is the most treasured position in the largest financial investment of the individual. So home insurance protect the home from natural and man-made disaster like fire, theft, flood, earthquake, etc. देखिए होम इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, कहते हैं ना कि अगर हमारा जो प्रॉपर्टी है उसका हम इंश्योरेंस करते हैं, सही है। क्यों इंश्योरेंस होता है, क्योंकि अर्थक्वेक, सही है, भूकंप आ सकता है, फ्लड आ सकता है, उसके अंदर जो नुकसान होगा जो उसकी भरपाई क्या करती है, उसकी भरपाई भी इंश्योरेंस कंपनी हमको देती है अगर हमारा इंश्योरेंस होगा तो. थेफ्ट, अगर चोरी होती है, कोई कीमती सामान आपके घर में है, ज्वेलरी, ठीक है, या और कोई कीमती सामान, तो उसका भी क्या होता है, इंश्योरेंस होता है. अगर कोई थेफ्ट चोरी करके भी ले जाए तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पुलिस कंप्लेंट के ऊपर और डॉक्यूमेंट्स देख के आपको जो है इमीडिएट अमाउंट पे करती है, ठीक है। उसके बाद है मरीन एंड कार्गो इंश्योरेंस. देखिए मरीन एंड कार्गो इंश्योरेंस, जैसे कि कहा मैंने कि बाद में जो पॉइंट हुआ था ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर कार्गो, सो कार्गो वो होता है ट्रैवल से जो आप साथ में लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है मरीन एंड कार्गो, जो लोग पार्सल इंटरनेशनल लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे अपना सामान एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं, उसको कहते हैं मरीन और कार्गो इंश्योरेंस. मतलब सामान की लेन देन करना, और उसके अंदर अगर कोई नुकसान हो, सही है, तो वो नुकसान आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको भर के देती है. तो उसके साथ ही एक इंश्योरेंस निकाला जाता है जिसको कहते हैं मरीन एंड कार्गो इंश्योरेंस. सो मूवमेंट ऑफ द गुड्स अक्रॉस नेशनल एंड इंटरनेशनल boundaries involve risks that can lead to damage shipments of the leadership of financial losses. Marine insurance cover all the damage caused of during the theft, railroad and sea air, etc. If offer complete financial protection during the transportation of goods and events of any losses. देखिए इसके अंदर कोई भी जो लॉस होता है, ठीक है, बहुत लोगों को क्या होता है इसके अंदर के
पार्सल फूट जाती है, उसके अंदर में सामान बाहर निकल जाता है, कहीं पे चला जाता है, चोरी हो जाता है, तो ऐसे लॉसेस को भरने के लिए मरीन इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये होता है मरीन इंश्योरेंस के अंदर, सही है। सो मरीन इंश्योरेंस का हम क्लेम कैसे करते हैं, देखिए, इन द केस ऑफ लॉस डैमेज ऑफ द कार्गो इन द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर, its agent of responsibility take the importance points like do not clear receipt on the delivery in order but give such as notice of the for damage। देखिए, हमको अगर कोई नुकसान होता है तो हम क्या करते हैं, उस एजेंट की तरफ से हम क्या करते हैं, उसको एक नोटिस देते हैं या उसको बोलते हैं कि इतना इतना डैमेज हुआ हम लोग का, तो वो डैमेज हो क्या करता है, हमें भर के देता है उसके अंदर। इन केस क्या होता है कि चेक ऑफ केयरफुली कंडीशन ऑफ द कंटेनेंस इट वाज अ डैमेज ऑफ होल। ओके, तो हम क्या करते हैं, उसकी जितना नुकसान हुआ है, जितना सामान गया, उसकी हम क्या उसको एक रिसिप्ट बना के देते हैं। उसके हिसाब से क्या होता है, उसका बोलते हैं ना कि उसका पूरा मुआयना किया जाता है, उसी हिसाब से हमें क्या देता है, इंश्योरेंस पे किया जाता है। सो ये होता है मरीन इंश्योरेंस के अंदर। हम इसका जो बाकी का पार्ट है वो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम बाद में देखेंगे और सिलेबस में आगे है, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट है इन वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर रूरल इंश्योरेंस। तो क्या है रूरल इंश्योरेंस? रूरल इंश्योरेंस प्रोवाइड इंश्योरेंस सॉल्यूशन टू मीट द नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल बिजनेस। देखिए, रूरल इंश्योरेंस में क्या आता है कि एग्रीकल्चर, जैसे कि बहुत लोग खेती करते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि अभी बीच में आया था तूफान, सही है, साइक्लोन, उसकी वजह से भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ। अगर उस टाइप का इंश्योरेंस हो तो क्या होता है, हमें इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है कि आपको जितना लॉस हुआ उतना वो आपको पे करके दे सकते हैं, ठीक है। कई गवर्नमेंट पॉलिसीज भी है जो हमें इसके अंदर हेल्प करती है। देखिए, अभी जहां जहां नुकसान हुआ वहां पे गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से बहुत लोगों को उसका पैसे मिले, सही है। तो ये होता है रूरल इंश्योरेंस के। So in rural insurance, the Insurance Regulatory Development Authority has set annual target for insurance company to provide insurance service to the rural and social sector. So our next point, personal accidental insurance. So personal accidental insurance, this type of insurance protect a person, a group person from the injury or disability of cause due to accident of any others events. देखिए, इसके अंदर क्या होता है, कंपनी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है, आपातकालीन स्थिति निर्माण होती है, तो उस टाइम पे उसे इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि इन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल और ग्रुप इंश्योरेंस। इंडिविजुअल इंश्योरेंस ऐसा मतलब अगर आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हो कहीं और आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको कंपनी वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है जो आपका हेल्थ रिलेटेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल दिया था सर्कस के बारे में, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर रिस्क बहुत है, ठीक है, तो ऐसी जगह पे ग्रुप इंश्योरेंस किया जाता है कि सबसे ज्यादा रिस्क है, ठीक है। तो जो सर्कस में लोग काम करते हैं उनको उनको अगर कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, या उनका कोई ग्रुप का या कोई कहते हैं ना कोई एक्सीडेंट होता है सर्कस के अंदर, तो ऐसे लोगों को भी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कि उनका जो रिलेटेड हेल्थ है वो उनका इंश्योरेंस देके उनको प्रोटेक्ट कर सके, ओके। और इसका 24 आवर्स अब सर्विस अवेलेबल होता है इसके अंदर और वर्ल्ड वाइड है। जैसे कि द प्रोवाइड द पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड 24 आवर्स वर्ल्ड वाइड इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, okay. So our last point in types of general insurance policies, commercial insurance. So commercial insurance provide insurance solution of all sector of the industry like technology, manufacturing, aviation, chemical, food, beverage, etc. सो इसके अंदर क्या कौन से कवर करते हैं कमर्शियल इंश्योरेंस के अंदर, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी को कोई धोखा होता है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी इंश्योरेंस, ठीक है, रिलेटेड टू एनर्जी पावर सोर्स। आफ्टर दैट इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉय बेनिफिट इंश्योरेंस। ये सारे इंश्योरेंस कमर्शियल इंश्योरेंस के अंदर होते हैं, ठीक है। सो फायर इंश्योरेंस, जैसे कि मैं लास्ट पॉइंट के अंदर बताया था कि अगर कोई जो कहते हैं ना कि कहीं जलने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो, बड़ा नुकसान हो, कि इसके अंदर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, फ्लड, अर्थक्वेक, इसके वजह से हमें मिलता है, ठीक है। इमरजेंसी इंश्योरेंस, जैसे कि कोई बहुत बड़ी मशीन से उसके अंदर तकनीकी खराबी आना या उसके अंदर शॉर्ट सर्किट होना, उसकी वजह से भी क्या होता है, हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, सही है। थेफ्ट इंश्योरेंस, चोरी के लिए, जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट के अंदर कहा था कि अगर बड़े पैमाने पर चोरी होती है, हमारा माल जैसे कैश और गोल्ड्स वगैरह जाता है, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल्स, ठीक है। सो इसके अंदर ये सब आता है कमर्शियल इंश्योरेंस। सो हमने हमारी लास्ट स्लाइड के अंदर देखा टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। हम आगे अब नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग।
सब जानते हैं हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्यों करते हैं, सही है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के कारण क्या करते हैं, हमारे जो आने वाले फ्यूचर में जो हमने जो गोल सेट किए हम क्या करें, इजी से वो अचीव कर सकते हैं, सही है। और उसके बाद हम रिटायरमेंट के लाइफ भी हम आराम से जी सकते हैं अगर हमारी इन्वेस्टमेंट सही होगा, हमारी प्लानिंग सही होगी, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने जस्ट कहा कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, हाँ, और इन्वेस्टमेंट में हमें फ्यूचर में प्रॉफिट चाहिए, तो कब सक्सेस होगा, जब हमारी प्लानिंग सही होगी। तो इसी की स्टडी करने हैं हमें कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन से हमें रिस्क आ सकते हैं उसके अंदर कि हमें वो लॉस की तरफ लेके जा सकते हैं, सही है। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल the meaning of the investment planning. Allocating the funds in proper investment vehicle is based on investor future goal time horizons and priorities along with the factor like liquidity, safety of the investment and the percentage of the return. देखिए कौन से इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, जैसे कि हमने एक लास्ट पॉइंट के अंदर भी देखा था और रिस्क मैनेजमेंट के अंदर भी कि देखिए एफडी है, सही है। उसके बाद शेयर कैपिटल्स है, गोल्ड है, बॉन्ड्स है, हम अलग अलग के अंदर क्या कर सकते इन्वेस्ट कर सकते हैं, सही है। सो हमें देखना है इसके अंदर कि हमें कौन से रिस्क आ सकते हैं जो हमें इन्वेस्टमेंट को हम मतलब इन्वेस्टमेंट के हमें रोक सके और प्रॉफिट को रोक सके, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क, देखिए कुछ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क हमने रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड में देखे हैं। सो सेम ही है वोलेटिलिटी। सो वोलेटिलिटी रिस्क in the risk investing instrument that are more volatility could imply that the individual investing can experience significant rise or fall over a period of time every time the changing the risks are come in the volatility risk। देखिए volatility risk यानी क्या होता है इसके अंदर कि हम जो रिस्क के लिए रेडी होते हैं वो ही रिस्क हर टाइम हमें नहीं आता। इसके अंदर ये बताया गया है कि आपको अगर इस साल सबसे जैसे कि अभी कोरोना चलो है तो क्या होता है बहुत सारी मार्केट की कंडीशन डाउन है, सही है। तो आपको हर साल यही रिस्क आएगा ऐसा नहीं, अगले साल क्या आ सकता है, इस टाइम के अंदर फ्लड आ सकता है। मतलब रिस्क जो आएगा वो पता ही नहीं होगा कि कौन सा होगा, मतलब हर एक चेंज होगा रिस्क के अंदर। शायद रिस्क मतलब कोई नहीं भी आ सकता है, लेकिन क्या होता है हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है उसकी वजह से, जो इसके अंदर बताया गया है वोलेटिलिटी रिस्क के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट capital risk. So whatever an investment is volatile or not, there is always a risk that can capital value may be fall. An individual needs to be aware before making such investment as there risks of capital in involved. So our next point in capital after market risks. So everyone knows about the market risks. Okay, the new situations, innovations, competitors, these are come in market risks, right? So there are various factors in the investment. So market risks under come equity risk. It is the risks that apply the investment in share since the demand and the supply mainly lead to drop the market price of shares. After that, the second point in the market risk, interest rate risk. So it is the risk of losing money due to changes the interest rates debt instruments. देखिए इक्विटी रिस्क के अंदर क्या होता है, हमें पता है कि इक्विटी शेयर्स की प्राइस कैसे अप डाउन होती रहती है। ओके, उसी तरह ही इंटरेस्ट रेट क्या होता है, फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी सेम नहीं रहता। ओके, सो उसके बाद आता है और नेक्स्ट पॉइंट करेंसी रिस्क। एवरीवन नोज अबाउट द करेंसी रिस्क, ठीक है। आपको हर वक्त बता रहा हूँ कि डॉलर का रेट कैसा होता है, हर टाइम चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। आज अगर 75 है तो कल 70 हो सकता है, 73 हो सकता है या 78 भी हो सकता है। मतलब क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या होता है, हमें अगर कोई डील करते हैं तो क्या करते हैं, डॉलर के रेट देखते हैं, उसी वजह से क्या हो सकता है हमें मार्केट में कभी नुकसान भी हो सकता है, कभी उसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर हम डील कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के अंदर, तो हमें करेंसी रिस्क ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। सो इट इज द रिस्क ऑफ लूजिंग मनी ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ द करंट वैल्यू ऑफ द INR लेस एज compromise of USD dollar or your Indian stock will be worth less in USD dollars. Okay, so our next point, liquidity risk. The risk of being unable to sell your investment at fair price and not getting the money when you want to know as the liquidity risk. So in this point, if you are selling some product and if you don't get the same money or same profit, so that's come liquidity risk. ओके, अगर आप कोई अच्छा अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो मार्केट के अंदर और जो आपको रेट चाहिए उसी हिसाब से आपको अगर रेट नहीं मिल रहा है तो वो क्या हो सकता है, आपका लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है, ठीक है। सो अपना जो प्राइस जो आपने तय किया है उसी हिसाब से अगर आपका प्रोडक्ट सेल हो रहे मार्केट के अंदर, ठीक है, आपको उसके अंदर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो आप
उसको रिस्क नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसी कोई रिस्क है जो आपका जो प्रोडक्ट सेम टाइप के अंदर अगर बिक नहीं रहा है, जैसा कि एग्जांपल लीजिए कि कॉम्पिटिटर्स हमारा सेम फीचर के साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो वही रीजन होता है कि हमारा प्रोडक्ट कभी सेल नहीं हो पाता, ठीक है, या उससे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है। तो अगर प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो हमें क्या हो सकता है, उसके अंदर लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है, मतलब उसको अच्छी प्राइस नहीं मिल सकती है, ठीक है। इट मीन्स व्हेन यू आर सेलिंग बट यू डोंट गेट द गुड प्राइस, आपका जो अच्छी जो आपने तय किए प्राइस वो आपको ना मिलना, इज कॉल्ड आवर लिक्विडिटी रिस्क। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, concentration risks. So concentration risks, the risk of losing money due to concentration is a single investment is called concentration risk, which can be avoided by diversifying your investment and spending the risk. इसके अंदर कैसा क्या है कि आपका हर जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट के अंदर भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई होगी, जैसे कि लास्ट एक पॉइंट देखा था हमने रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। अगर आपने आपके जितनी डाइवर्सिफाई होगी, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, उतना आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सही है। सो आपका ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पे हमें आगे जाके इन्वेस्ट करना है, तो आपका रिस्क कम होगा। अगर आपने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया, आपने एक ही जगह इन्वेस्ट किया और अगर वो लॉस में चला जाता है, तो क्या हो सकता है, आपको बहुत सारा रिस्क आपको सहन करना पड़ सकता है, आपको हो सकता है। सो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क यही आपको बताता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, credit risk. So credit risks arise when an entity is unable to pay the interest and goes into financial difficulties. Hence, the credit rating of the bond need to be evaluated. It also known as difficult risk. So इसके अंदर आप क्या बताएंगे कि क्रेडिट रिस्क, अभी क्रेडिट रिस्क आपको कौन सी चीज के ऊपर आएगा, आपके इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। सपोज आपने कोई एक गोल्ड जो आपने खरीदा है, आपने उसके बाद आपको क्या किया, आपने वो उसके ऊपर लोन निकाला, मतलब गोल्ड लोन किया, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे कि आपको सिर्फ उसकी जो मुद्दल है, मतलब जो अमाउंट है वही भरनी है, आप इंटरेस्ट नहीं भरना चाहोगे और उसका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, तो क्या हो सकता है, आपका वो गोल्ड, मतलब वो लोग क्या करेंगे, जैसे वो नीलाव, वो हो सकता है, ठीक है, उसके अंदर। तो वही बताया उन्होंने कि अगर आप जैसा इंटरेस्ट रेट चेंज होता है उसी हिसाब से क्या होता है, आपका जो है जो 25 का गोल्ड, वो भी उसकी प्राइस भी क्या होगी, मतलब आपको आप भर नहीं पाएंगे, तो उसके अंदर आपको लॉस हो सकता है। सही है। और होता है क्रेडिट रिस्क के अंदर इंटरेस्ट रेट जैसा चेंज होता है, वही उसके हिसाब से क्या होता है, आपकी अमाउंट आपको उतनी ज्यादा भरनी होगी। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है, बोलते हैं ना कि हर एक अमाउंट के ऊपर क्या होता है, इंटरेस्ट रेट लगता है। सपोज आपका अगर 1000 है, उसके अंदर आपका इंटरेस्ट इंक्लूड है, सही है। और उसके बाद अगर आपने वो पे नहीं किया इंटरेस्ट, या वो अमाउंट उस टाइम पे पे नहीं की, तो क्या होता है, उस अमाउंट के ऊपर भी जो ऑलरेडी इंटरेस्ट लग चुका है उसके ऊपर भी क्या होता है, फिर से इंटरेस्ट लगता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रिस्क आपका बढ़ेगा, आपका क्रेडिट रिस्क बढ़ेगा। ये होता है क्रेडिट रिस्क के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, reinvestment risk. So, reinvestment risk, it refers to the risk of loss arising from reinvesting principal of income at the lower interest rate. Example, suppose of your purchase of bond paying 4% reinvestment. So, risks affect you when the interest rate drop at you need to reinvestment principal at least 4%. देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है कि अगर आपने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किए, उसके ऊपर आपने क्या किया, 4% से आपने इंटरेस्ट दिया उसको, एक कस्टमर को, और उसके ऊपर अगर आपने फिर से री इन्वेस्ट की और आपको 4% से कम इंटरेस्ट मिल रहा है, 4% से कम प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो क्या होगा, आपका लॉस होगा री इन्वेस्टमेंट के अंदर। आपने एक बार इन्वेस्ट किया, आपको वहां पे प्रॉफिट जनरेट हुआ, प्रॉफिट मिला, लेकिन इसके अंदर आपने फिर से री इन्वेस्ट किया वही अमाउंट, और उस 4% से क्या मिला, आपको कम में प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, आपका री इन्वेस्टमेंट रिस्क हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन रिस्क। सो इन्फ्लेशन रिस्क के अंदर क्या आता है कि द रिस्क ऑफ लॉस द परचेसिंग पावर ड्यू टू प्राइस राइज इज नोन एज इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन reduce the purchasing power of money of over time. Cash and debt instruments like bonds are prone of inflation instrument like real estate and share offer some protection against inflation. सो इन्फ्लेशन रिस्क के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि एक तक हद तक प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है, इंक्रीज होती है, ओके। सो कभी डिक्रीज भी हो सकती है। लेकिन इसके अंदर क्या रिस्क बताया गया है कि जैसे कि आप मान लो कि अभी प्रोडक्ट एक है गोल्ड, तो अभी फिलहाल गोल्ड की प्राइस कितनी हाई हो चुकी है, सही है। सो अगर कोई लोग इसके अंदर कोई खरीदना चाहते हैं, तो क्या होगा, तो उसको सबसे महंगा पड़ सकता है, सही है। अगर किसी ने प्लान किया होगा कि हमें
2 महीने के बाद खरीदना था, लेकिन 2 महीने के बाद पता चला कि उसकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो हमें क्या हो सकता है, वो इंक्रीज होने के कारण हमें उसके अंदर अगर हमने मनी इन्वेस्ट किया तो क्या हो सकता है, हमें शायद नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि बोल नहीं सकते आगे जाके इसकी प्राइस डिक्रीज हो। मतलब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब क्या, चढ़ उतार जिसे हम कहते हैं, उसके हिसाब से क्या होगा, अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शायद हमें सबसे ज्यादा अगर हमने अमाउंट उसके अंदर डाली गोल्ड के अंदर, तो शायद आगे जाके नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। ठीक है। सो our next point, horizon risk. So what is meant by horizon risk? The risk that your investment horizon may be shortened due to unforeseen, unexpected event like a job loss may force you to sell investment that you were expecting to hold for a long time, making your loss money. देखिए इसके अंदर क्या बताया, हॉरिजॉन रिस्क मतलब ऐसा रिस्क कि शायद आपको आगे चल के हो सकता है। जैसे कि मैंने आज बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट कौन से बेसिस पे की, मेरे करंट जॉब प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि मैंने मेरी करंट जॉब के प्रोफाइल के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, मेरी जो सैलरी है पर मंथ वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होती है 1 लाख रुपीज। ओके, एक एग्जाम तौर पे बता रहा हूँ। तो अगर 1 लाख रुपीज क्रेडिट होती है तो उसके अंदर से मैंने 70,000 और 60,000 मैंने क्या किया, इन्वेस्ट किया कौन से अदर पार्ट में। सपोज मैंने कोई बड़ा बिजनेस में चालू कर रहा हूँ, या मैं कोई बड़ा फ्लैट ले रहा हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने मेरा पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है, लेकिन सडनली अगर मेरे जॉब के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, जैसे कि अभी देखिए कोरोना की वजह से बहुत लोगों के जॉब जा चुके हैं, मतलब बहुत लोगों को जॉब जॉब से निकाला गया है। ठीक है, या किसी कारण उन लोगों को जॉब छोड़ना पड़ा है, सही है। तो ऐसे टाइम पे मेरी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, पूरी नहीं होगी, आधी ही रहेगी। तो उसे ही कहते हैं हम हॉरिजॉन रिस्क, कि ये रिस्क कैसे भी आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड है, कोई कंडीशन आ सकती है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, या किसी कारण हमारा जॉब जा सकता है, तो इसी वजह से क्या होगी, हमारी इन्वेस्टमेंट अधूरी रहेगी। तो उसे ही कहते हैं हम हॉरिजॉन रिस्क। अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्गेविटी रिस्क। सो लॉन्गेविटी रिस्क के अंदर क्या होता है, इट रेफर टू द रिस्क ऑफ आउटलाइंग इंक्रीजिंग योर सेविंग एंड रिलेवेंट फॉर पीपल हु आर रिटायर और नियरिंग रिटायरमेंट। इसके अंदर क्या बताया, देखिए कि अगर मैं रिटायरमेंट के करीब जाता हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखिए जब रिटायरमेंट आता है, रिटायरमेंट का टाइम आता है, तो लोग इन्वेस्ट करना छोड़ डालते हैं। सही है, क्या करते हैं वो लोग, सेविंग में ज्यादा बिलीव करते हैं। क्या कहते हैं कि अगर हमारी सेविंग ज्यादा होगी तो हमारी रिटायरमेंट के बाद क्या आ सकती है, काम आ सकती है। सही है, लेकिन इसके अंदर भी क्या रिस्क बताया गया है कि अगर हमारी सेविंग ज्यादा है, हम सेविंग करेंगे, लेकिन सेविंग से पैसे बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेंगे। सही है, पैसे बढ़ते कैसे, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ लगाते हैं, तो हमारे क्या होगा, पैसे बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं और बढ़ती भी है। सही है, तो यही एक रिस्क हो सकता है इसके अंदर, लॉन्गेविटी रिस्क के अंदर, कि अगर हमने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया, सिर्फ सेविंग के ऊपर फोकस किए, तो रिटायरमेंट के टाइम पे हमें वो रिस्क उठाना पड़ सकता है। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क। अभी इसके अंदर क्या बताया गया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क के अंदर, it refer to the risks of loss that arise when investing in foreign countries. For example, the risk of nationalization. When you buy foreign investment, there is a risk of political, social, political environment might affect your capital. देखिए इसके अंदर क्या बताया कि अगर आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो पैसे है वो अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, और सडनली आपके और आपकी कंट्री के रिलेशन, दूसरे कंट्री के रिलेशन खराब होते हैं दूसरे कंट्री के साथ, तो आपने जहाँ फॉरेन अपने पैसे इन्वेस्ट किया है, वो कहेगी दूसरी कंट्री कि आप हमारे साथ बिजनेस मत कीजिए, हम आपको यहाँ पे बिजनेस करने नहीं देंगे। कोई सोशल फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल फैक्टर इन्वॉल्व है इसके अंदर। सही है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो कहेंगे कि हम आपको यहाँ पे बिजनेस करने नहीं देगी। तो ऐसे टाइम पे आपकी इन्वेस्टमेंट वहां पे भी क्या हो जाएगी, अधूरी रह जाएगी। ठीक है, आप वहां पे बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क के अंदर। ठीक है, सो ये थे हमारे पूरे पॉइंट्स। थैंक यू।